A very good evening to all our dear partners in this very special session of Perspectives. We are very thrilled to welcome a very distinguished guest, a legendary investor, Mr. Vijay Kedia. Vijay is a renowned investor and the founder of Kedia Securities with a remarkable journey that began at a very young age, and he has become one of the India's most successful and respected figures in the investment world and in the music world. Vijay is not only known for his astute investment strategies, but also for his innovative approach to educating and engaging investors. His unique smile strategies, small in size, medium in experience, large in aspiration, and extra large in market potential has guided many to achieve significant financial success. Beyond his professional achievement, Mr. Kedia is also a talented singer, as we all know, who creatively uses music to explain market trends and investment concepts. Today, Vijay sir will share his valuable insight on his journey and also why he also promote, not only while he is a astute capital market investor, but he also promote mutual fund through his songs and also an investor in mutual fund, which we'll talk about. We are really honored to have him with us. Thank you very much, Vijayji, for accepting our invitation and attending and coming and addressing all our distributor partners here. Thank you very much, Gauravji, and thank you, Namrata Kedia, also, who invited me to, gave me this opportunity to address this dignified crowd today. I am really grateful to all of you. Hey, thank you. बहुत धन्यवाद आपका विजय जी, and we are really very thrilled, to have you with us in the perspective session. Of course, I think everybody knows about your songs, everybody knows about your success in the investment world. But थोड़ा बहुत आपसे जानना चाहेंगे in terms of your, let us talk about your journey, and if you can share with all of us when you started. We all know that maybe you started at a very young age, but can you just take through your journey in terms of how it got started, how you got motivated into the stock market, and take us through your journey. So the thing is this, I was born in a stockbroking family in Kolkata. So you can say that stock market was there in my blood, but unfortunately, what happened that when I was in class 10 and 14 years of age, and my father was 40 then he died. So, and I was in class 10 at that point of time. I mean, when I was 14, when he died. So, and I had to appear for the exam after 3-4 months after his death. So I failed in the exam. So now, so that was the turning point of my life, as there's a blessing in disguise. That there I understood that now the brighter picture of my life is over, And since we were in a very large joint family, 21 people were living in one chawl type kind of house and sharing one toilet, 21 people. So that was the kind of scenario there in Kolkata. So family, there was no harmony in the family. Situation was also very, bad and all. So there I understood this responsibility of mine, that now I have to get up as soon as possible. I have to, I have to get up on my own feet. Otherwise, things for my own family, like we are four brother and sister and my mom. So there I understood at 14 years of age that now I have to get up. So first thing, the only thing which came to my mind was only stock market, But I was not at all interested into broking and all, because I didn't want to polish people, didn't want to butter them, and didn't want to unnecessarily being nice to them. So there I decided that I have to become a trader. So this is what my, you can call it my attraction towards trading started. And from that day only, within the 12th days of my father, I started. I was sitting with my grandfather and started understanding what is he doing, the accounts and all. How does he talk to his clients and all those things I started noticing. Somehow, then after that, and I was not at all interested in study. I thought it is useless. It is not going to come of any use to me. But ultimately, my mom said that if you will not, at least you will not become a graduate, nobody is going to give you daughters to marry. So
So in that attraction, I did my graduation and That all. was your motivation to do That was graduation. my motivation. So this is how I started. But finally, when I turned 19 years of age, so I think that at that point, on that time, 21 was the minimum age required to get into the market. You could have gone into the ring. So, but Kolkata Stock Exchange, they tweaked the rule for me. And when I turned 18 or I think 19, so I started going into the market in the hall, and I started officially. I started doing my trading, and before that, I used to do mock trading with my grandfather. So I used to beat that गद्दा वद्दा को पीट के मैं बोलता था 1 लाख अच्छा. लिया 2 लाख लिया 3 लाख लिया. So Wow. my grandfather was little worried कि he doesn't talk below lakhs. He is not talking about 100 shares or 200 shares or 500 shares. When talking about 1 lakh, 2 lakh, 5 lakh. So that was the aspiration I had, then. So as I said, then finally when I turned 19, I joined the ring, and but I was not interested in broking. So a time came that my family actually separated. They said we don't want to continue with this kabadia, with this guy, this juari or gambler or whatever you call it. So that was blessing in disguise for me. So this is how I Maybe. started my stock market journey. Yeah. But yeah, of course, it was think big, vision right from the beginning. As you were saying कि आप लाख में ही करते थे, 500,000 शेयर की बात नहीं करते थे. So think big approach was right from the beginning in terms of your mind. Yeah, the approach was very simple that I have to do something big, but Hmm. just you keep on thinking that does not mean that you can become big. You have to play your cards well also, right? And of course, 100% you need to have luck also. But I think the biggest thing which might little bit work for me was that I did not have any plan B or plan C or plan D. So this is what I learned a valuable lesson. When in life you have plan B, that means you have plan Z also. Then you are not focused on one thing, then you are focused on everything. So you may be successful, you may not be successful, I don't know. But what I have learned in my life is that it's very important to have plan one, और उसी में जीना उसी में मरना, क्या plan बात. A. This is what I think कि जीना है No, या I think मरना है या इसके सिवा जाना का. Yeah. बहुत बिल्कुल एक लक्ष्य की तरफ पूरा फोकस रहे और कट डाउन योर ब्रिजेस इज व्हाट यू आर सेइंग, ताकि पीछे जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन आगे ही नहीं बढ़ना है. जाएगा का बस. नहीं नहीं, पीछे बहुत ही बढ़िया. पीछे तो गंगा नदी थी हमारे वहां पे समुंदर. यहाँ समुंदर कलकत्ता में गंगा नदी थी. पीछे गया मैंने गंगा में चला डूब मरो. नहीं नहीं, आई थिंक एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट इज अ ग्रेट ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस in terms of having focus on our goals. Also, आपका स्टॉक मार्केट का जर्नी के बारे में तो खैर काफी हम सब लोगों ने पढ़ा भी है, जाना भी है, सब जानते हैं कि आपने बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग किया है. तो विल टॉक अबाउट दैट, your frameworks also which you use. You keep on smiling and you have a framework of smile also. But ये songs का मतलब ये कैसे आपके उसमें स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपने उसको incorporate किया? What motivated you, and how it resonated well in terms of what you are doing? So I'll tell you, it started when I was in class 8 or 9 or something like that. I was not very good into study. My mathematics was very good, and my Hindi was very good. So I studied from a Hindi medium, so that of course Hindi has to be good, and being in Kolkata, and my mathematics was also very good. So I was, in fact, in the class, I was a last back, they call it backbencher. Na? So I used to sit in the last bench. So we had I had a company of 2, 3 people. So we were not interested in what's going on the blackboard. Or we were more interested in what is happening on the what you call table. So we used to play music and we used to sing song. आपस के अंदर में लोग अंताक्षरी करते रहते थे हम लोग. So this is I was really fascinated about singing, singing. बचपन से चलता था. And there is one incident. So I wanted to get into NCC, but I was Yeah. late for that NCC. NCC classes were closed. So they said that now class is closed. Now you cannot get admission in NCC. तो मेरे को इतना शौक था एनसीसी में जाने के लिए. So whenever the NCC class used to take place, I would go and stand out of the class and listen to what is happening inside. So one day some colonel or some major, whatever you call it, from military came to educate people. वो class लेने के लिए आते थे. तो आए तो उन्होंने किसी को पूछा कि लड़का बाहर क्यों खड़ा रहता है. मैं कल भी आया, जब भी आया तब भी बाहर खड़ा था. तो बोला इसका एडमिशन नहीं हुआ, इस बोल के बाहर में खड़ा रहता है. तो somebody told him कि सर he sings गाना अच्छा गाता है, sings very well.
तो उसने मेरे को बुला लिया, बोला अच्छा तू गाना गाता है, चल गाना गा। तो मैंने 1 गाना गाया, 2 गाना गाया, 3 गाना गाया। वो इतना खुश हो गया, मेरे को एनसीसी में ले लिया उन्होंने। क्या बात तो है। तो शायद that was the turning point in my life. I understood that with music you can With really win music. the hearts also. It is not necessary that you can only make money. और मेरे को पैसा कमाने का तो था नहीं, but you can win hearts. तो ऐसा Correct. मेरे को समझ में आ गया, मे बी दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो म्यूजिक मेरे साथ में था, वो चलते ही आ रहा है बस। अभी फर्क इतना है कि अर्लियर आई यूज्ड टू I was earlier also I was a bathroom singer. Today also I'm a bathroom singer. Only difference is this: earlier I used to sing in public bathroom. Now I'm singing in a private bathroom, my own bathroom. So that is the difference. So otherwise, यही है सर। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली सर, आपके सॉन्ग्स ने आई थिंक मिलियंस ऑफ द पीपल हैव बीन इंस्पायर्ड टू इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स, इनटू स्टॉक मार्केट्स थ्रू दिस। सो एब्सोल्युटली यू हैव बीन हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल लाइक अस थ्रू सिंगिंग। तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ कि आपके जो स्माइल का फ्रेमवर्क आप बात करते हैं उसके बारे में कि दैट इज समथिंग विच यू अप्लाई व्हेन यू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में आप हमें बताइए, व्हाट इज दिस स्माइल फ्रेमवर्क, हाउ डू यू अप्लाई टू द कंपनीज इन विच यू इन्वेस्ट इन। No, so let me tell you, when I started investing in this market, it's a journey, 30 years, 35 years of experience. It is not like that I was successful the moment I got into the market. So I started with trading, but after 10 years of my trading, when I realized that I couldn't save even 10,000 rupees after 10 years of struggle, then Oh, I switched on. Yeah, that there was a time that for 10, 12 years I was struggling. But I used to make money in trading, but in the next shot, on the next move, or in the next, whatever I used to lose, whatever I had made in 5 trades, I used to lose in 1 trade only. So this happened for last for 10 years or something. Then I realized that I'm not cut out for this, and maybe I will not become big in trading. So I switched to investing. So this is maybe 10 years back. I realized that that time I had not discovered that I am applying this formula, this called Smile, as you had just defined. So later on, I realized, because I was very much interested in investing into small cap stocks, you know, because I had this belief that small things turns, faster. Like suppose if a dog agent. has to turn around, so it will turn faster than an elephant. Elephant will take some time to run or to, so to speed up. So I was always, and the second thing, as I told you, that you see everything, whatever you do in your childhood, actually it reflects that what you are going to do in your young age or old age or whatever it is. I think there is some connection. So I was more interested into quantity. I wanted to buy quantity. So like numbers, I should have 5 lakh shares, I should have 1 lakh shares or 2 lakh shares, 3 lakh shares. Of course, I cannot afford to buy 1 lakh shares of any large cap of 12 lakh crore or 5 lakh crore. But naturally, I can buy, suppose a company market cap is 5,000 crore. So maybe I can buy 1 lakh shares. I can buy 1% of that company. So that gives me a kind of satisfaction. Okay, I am having this much of quantity, or I am having uh, this much Size. percentage size. So Correct. size really, does matter to me even today also. So this is how I discovered that I am liking the small cap companies or small size companies or micro cap companies and all. So, and second thing, as I said, that I was, since the beginning, I had made up this my mind not to invest any company where there is a manipulation, where the track record of the management is, there is a red flag on the management, and they do not have a track record. As I said, corporate governance is not there. So all these things are very much, embedded in my mind, Hmm. that I don't want to make money in any manipulated company or any such companies, fictitious company or some bhangar cap, I call them. So I invented or this term, that there is large cap in the market, there is mid cap in the market, there is small cap in the market, there is another cap which is called bhangar cap, junk cap. So this I was very much confident that I will never would, in my senses, by mistake, I may buy some companies which may later on turn out to be a fraud company. There is a different thing where management is manipulating or whatever it is, which is happening in the market. So जी. from my side, I was clear. So that is why my main focus was on the management. So that is why I said small in size, medium in experience.
So at least management should have an experience of 15, 20 years in this market. So that in 15, 20 years of journey, he must have fallen many number of times, maybe 4 times, 5 times, 10 times, he must have fallen due to so many other reasons, whether because of either it could be because of forex, it could be of failure of monsoon, could be because of war, could be because of raw material problem, could be because of supply chain problem, strike, transport strike, or whatever, whatsoever. So he must have seen in 15 years, 20 years of his journey, he must have come across all those kind of problems, and he has learned how to deal with all those problems. So that is why I said the 15. This is what I did. I never invested in new companies. Uh, if so far I remember, I might have invested in the 30, 35 years of journey in 1 or 2 or 3 IPOs. I don't remember, but Oh, I never invested in IPO because I wanted to invest in the company which is having a track record, track okay, record. of 15, 20 years, as I said. So that is why, and large in aspiration. And one thing I really understood, that if the management would not become from a crorepati to arapati, from a millionaire to say billionaire, I will just putting my thousands of rupees, I will not become a lakpati. I cannot become a millionaire until Correct. unless the cake size of the cake becomes big. So for that, aspiration of the management is very important. So that large in aspiration, this is what I was doing unknowingly. I myself did not know that I am following this formula, but this I had been doing for 15, 20 or 25 years. This is what I had been doing. And as you said that E stands for extra large market potential. Even if the management experience, even the product is very good, even that there is no red flag into the company, even that the size is also small, but the market size of the product is not large enough so that the company can become from a micro cap to mid cap or mid cap to a large cap. If that migration cannot happen, that migration only happens when the pie is so big, if the market size is so big. So this is what I had been doing unknowingly. Later on, maybe 6, 7, 8 years back or 10 years back, one day I sat and I realized what exactly I'm doing in this market. So I found out that this is what the formula actually I am following. So I created this formula, and till today I am following the same thing, same pattern or same philosophy or same principle. Nice. That's superb, sir. Superb. I think इन्वेस्टमेंट्स में भी, म्यूचुअल फंड्स में भी हम हम लोग भी जब इन्वेस्ट करते हैं तो वही आपने जो बोला, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ अर्निंग, बिजनेस कैसा है, क्या पोटेंशियल है, इन सभी फैक्टर्स को देख के फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं. और थैंक यू सो मच. आई थिंक दिस फ्रेमवर्क, आई एम श्योर, will definitely help all our partners and investors whenever they are looking at investment. How to approach investment is this one. आपने पिछले इन द लास्ट मोर देन 3 decades यू हैव सीन सब तरह की साइकिल्स देख ली आपने. यू हैव सीन बुल मार्केट, यू हैव सीन बियर मार्केट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू थिंक बेटर, इन्वेस्ट बेटर बाय ट्यूनिंग आउट द नॉइज, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइज भी रहता है मार्केट में. और अगर बियर टाइम का पीरियड है तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है, और अगर बुल बियर है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहती है. पीपल आर एक तरफ का इमोशन रहता है. How do you find calm and clarity in that midst of uncertainty, so much of noise, in the market, and through these cycles, bulls and bears? So, how in those last 3 decades, what's your learning, and how do you keep that calm, fiction, to stay invested? Because आप जब invest करते हैं तो I'm sure there are a lot of portfolios in which you have seen drawdowns which are much higher. You have seen various volatility. So, how do you keep that calm? And your message to all of us through your experience. So I'll tell you one thing I have understood, and I believe even today also, and one thing is very clear in my mind, that we are a rising economy. And I had read this thing maybe 20 years back somewhere, that as long as a country has a population growth and productivity growth, there is no looking back into that economy. As long as you can relate this thing, or which like country like Japan and all, where country growth is there, but rising at a low rate, and population growth is minus, what you call negative on the contrary, right? And that is why you will find that the stock market in Japan, which I think made a high in 1980, if I'm not wrong. Yes, and till date, till 2025, that rate has not yet come, what they did in 1980.
So it's a classic example. And it proves that whenever I read this thing, so it proves that as long as the country population growth is there and productivity growth is there, there is no looking back into the economy. Mm. And since the stock market is the reflection of the economy only, so there is no Correct. looking back for the stock market also. This is Mm. what it is very well understood. And as you will agree that, and I also again read one more thing, that since 1990, there was never any 1 year when India did not rise more than 5% GDP growth rate. Forget about this COVID and all, and maybe there were some hiccups due to some problem, some international, some worldwide, some problem is there. Otherwise, on an average, we have grown more than 5% GDP growth rate. I'm talking about. And of course, we also had a population growth of 1%. I think now it is 1.25% for many years. Now I think it has fallen back to 0.75 or something, but whatever it is, but 1% average, we are growing. So these two things I put together, I understood this philosophy. And third thing which I noticed in the market is this, the stock market, behavior of the stock market. And as now you will also notice that the pattern has emerged in this market, that deeper the fall, steeper the rise. This is what happening. Mm. You know, Change your um, right. yeah, and mainly after 2002 and 3, mainly after 2003. जितना तेजी से मार्केट गिरेगा ना, उससे डबल 4 गुना रफ्तार से मार्केट बढ़ेगा. This is what happened. Mm. Another changes which I noticed into this market was before 2003, bull markets always were shorter and bear markets were longer. Mm. Chart will show you this thing. Like bull market used to last not more than 9 months, and bear market would last not less than 3 years. This was the pattern. Okay, since 1970, 80, or forget I would say 1990. This is or 70 or 80. This was the pattern of stock market. Some dramatic change happened in 2003 when bull market lasted for 5 years till 2007 December or 8 March. So lasted for 4.5 or 5 years. And after that, biggest crisis of the century came, financial crisis, Lehman Brothers crisis came in 2008 mid, and world market collapsed. India also collapsed, but the bottom was made within 9 months. Within 9 months, top to when the market started crashing, within 9 months, stock market index made their bottom and started recovering from there. They did not touch the bottom. They did not a fresh bottom. Of course, it took some time to get to the new high, but that is different. But the crisis was over. So this also tells us something more, that some economic structure of India has changed. Bull markets are longer and bear markets are shorter. So if you combine all these things, connect all these dots together, you come to this conclusion that come what may, if I am riding a right train, I should not get out of it. I should not get down of the train. Okay. So that is the only mantra you have to follow in this market, in a rising economy, in a rising stock market, that if the selection of your stock is right, in a rising company, you should never get out of it. And number of times in my life, even today it happens that so many shares had fallen 65% from the peak. My own investments. There had been a drawdown of 65%. 50% was common. Still today also it is common, 50%. Because I am dealing in mid caps or small caps and all. So that's a problem. So for your viewers, they should also understand mid caps and the small caps are very risky. They should remember this thing. You should have that guts. You should have that mindset to see a 65% drawdown of your portfolio, and then its stock price goes up 400% from there, from that bottom. This I have seen number of times. All my life I have been seeing this only. So what happens, Gauravji, when suppose my stock goes up 3 times or 4 times, it doesn't go into my head. I don't calculate my money. I never calculate. In the stock market, one thing everybody should remember, don't calculate your money till you sell your shares. That is why there is a quote of mine that your demat statement belongs to the market, your bank statement belongs to you. So always one should remember, your investment belongs to the market. Your investment does not belong. I do not spend 1 rupee
just looking at my Demat statement. Let me tell you, even today, I will not spend even 1 rupee looking at my Demat statement, because Demat statement is nothing. It's a paper profit. You know, until unless I sell the shares and I have 5 lakh Correct. rupees in my bank account, then I can think of spending 10,000 rupees. Okay, 5 lakh रुपए मेरे पास में, 10,000 रुपए आज हम कोई काम में, कोई मजा के लिए मैं कर सकता हूँ. Otherwise, I won't do that. So this is my mindset. मारवाड़ी टिपिकल पक्का मारो मारू मारू mindset आप बोल दो उसको, जो भी हो आप जी बोलो उसको, जी typical मारवाड़ी mindset, you know. So when I am not excited with the profit I am making in my Demat account, same way I am not disturbed also when I am losing money in my Demat account. You know, हम्म, so as you ask, okay, what do I do when market falls and there is a drawdown in my stocks? Then how do I keep my mind calm? Because I'm not getting excited when market is rising. So if you will become excited, then you will become depressed. No. So to correct. me, it is nothing. It is just I'm as if I am watching some match on television, or I'm watching some show. You know, sometimes you're laughing, sometimes you are crying, sometimes you are being emotional. At some moment, you are becoming whatever it is. So to me, it is like a show until unless I sell my shares. And if I have belief that the shares should have a run up of 10 years or 15 years, so the profit does not lure me. And of course, when I'm losing my money, when I'm losing my capital, there are a number of times when I'm losing my capital also. You know, the stock price has has gone down below my cost price. But I have understood this is a part and parcel of this business, so no problem. ये नहीं, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई. और ये माइंडसेट हमें सेम रखना है, टेम्परामेंट सेम रखना है, चाहे वो बुल मार्केट हो चाहे वो बियर मार्केट हो. और एज लॉन्ग एज वी आर बोर्डिंग द राइट ट्रेन, अगर राइट कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, राइट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, और एनीवेज इंडिया इज द राइट ट्रेन टू गेट इन्वेस्टेड. तो एज लॉन्ग एज यू आर इन्वेस्टेड इन द इंडियन मार्केट, यू आर देयर इन द राइट ट्रेन. तो आप परवाह ना करें फिर अगर वो ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम भी होती है बीच में कभी, या कोई वॉलेटिलिटी आती है तो. ये नहीं, ट्रेन बहुत के अच्छा. जैसे है, समझे, यहाँ से आप कलकत्ता जा रहे हो, 3 घंटे का जी. रास्ता है आपका. हाँ जी. ठीक है, आपने सब देख लिया कि हाँ भैया मैं कौन सी प्लेन में जा रहा हूँ. समझो मैं इंडिगो में जा रहा हूँ फॉर जी. एग्जांपल के लिए. मैं करेक्ट. देख लिया इसका एक्सीडेंट नहीं होता है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, मोटा मोटी टाइम पे पहुंचती है, मोटा मोटी सब हाँ कुछ जी. ठीक ठाक है, समझिए हम लोग. तो मैं करेक्ट. ट्रेन में बैठ गया. उसके बाद में अगर वो बम्प आता है थोड़ा सा, उसके अंदर में एयर पॉकेट्स आते हैं, उसके बाद में प्लेन थोड़ा लेट हो जाता है, उसमें खाना कभी अच्छा नहीं आता है, कभी आप चिड़चिड़ापन करते हो, कभी करेक्ट. सीट ठीक नहीं है. पार्ट एंड पार्सल है भाई. अभी क्या करेगा, प्राइवेट प्लेन खरीद लेगा, इतना नहीं है तो अभी क्या करोगे. आपको करना पड़ेगा सब लाइफ में. तो सेम इन्वेस्टिंग भी ऐसा ही है. इफ यू आर बोर्डेड इन द राइट प्लेन एंड इफ यू नो हाँ. दैट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्लेन, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इज unquestionable, then you just sit back and relax and have your wine or coffee or छाछ और मट्ठा या जो भी है, आपको पीना पीजिए, आप नहीं, नींबू सही बात पानी. है, बिल्कुल एब्सोल्युटली. कई निवेशक होते हैं, कई नॉर्मली होते हैं कि वो फ्लाइट में तो बैठ जाते हैं, लेकिन कोई वॉलेटिलिटी होती है, मौसम हाँ खराब होता है, तो बोलते हैं कि अभी हमें प्लेन से कूदना है. तो प्लेन से हाँ. कूद के वेल्थ नहीं क्रिएट हो सकती है. आप यू सिट बैक रिलैक्स. कोई भी अगर प्लेन में कभी मौसम खराब होता है तो अनाउंसमेंट होता है कि अपनी सीट बेल्ट को बांध के बैठ जाइए, आप आराम हट से जाइए. एंजॉय. बाकी वो कैप्टन पर छोड़ो. तो कैप्टन यहाँ पर जो फंड मैनेजर आपके हैं, जो जी म्यूचुअल बिल्कुल. फंड के जो फंड मैनेजर है, वो आपका कैप्टन ऑफ द शिप है. वो पायलट आपका है एब्सोल्युटली. बेचारा. उस पर बिल्कुल. छोड़, उसका भी जिंदगी दाव पे लगा भाई. उसके वो भी बीवी पायलट बच्चे है. हैं, उसका भी करियर है, वो भी नहीं, है. तो एब्सोल्युटली. वही काम उन पे छोड़ दो, उनके पर छोड़ दो, तो वो अपने आप. नहीं, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया. बट क्योंकि आपने भी म्यूचुअल फंड की भी बात की और म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स की भी बात की कि वो पायलट हैं, आप बैठे हैं. वी ऑल नो यू आर ए लेजेंडरी इन्वेस्टर योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड यू हैव क्रिएटेड मेगा वेल्थ इन इट सक्सेस. बट आई एम वेरी क्यूरियस, म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई एक्सपीरियंस है आपका म्यूचुअल फंड का? देखो सर, ऐसा है कि मैं म्यूचुअल फंड के लिए गाना गाता हूँ, और मैं अच्छा. म्यूचुअल फंड को खूब प्रमोट करता हूँ. जी. मैंने कम से आई मस्ट हैव रिटन 20-21 सॉन्ग्स, ओके, ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी. यस. करेक्ट. And just out of the context, I just remembered on 14th August, National Stock Exchange invited me to organize one program on हाँ. Swadhinta Divas, on Independence Day, for 15th of August. And I was there and I sang songs on financial literacy and all. It was a beautiful program. All SEBI, top officials of SEBI were also present there. And of course, MD and CEO of NSE and everybody was there. तो ये तो मेरा समझिए. ये सॉरी, आपका मैं क्वेश्चन भूल गया, मैं भटक जाता हूँ. क्या आपका क्वेश्चन नहीं, क्या था? म्यूचुअल फंड का मैं आपसे हाँ, म्यूचुअल फंड समझना का. चाह रहा था हाँ, कि म्यूचुअल फंड में या आप या
भी खुद याद आ गया। निवेश करते हैं क्या? हाँ, तो 20-21 मैंने गाने गाए हैं। आउट ऑफ 20 जी। और 21 गाने में, और मे बी समझे 20 सॉन्ग्स में, मे बी देर आर 3 or 4 or maybe 5 songs. And in every songs, actually, I am trying to educate people. I'm trying to educate new investors, small investors, to start their journey through mutual fund only. Don't do, as I always say, it's my very pet thing. Ki, bhai, if you don't know how to drive a car, will you drive a car? If you will drive, just because your father has a car, you can't drive a car until unless you करेक्ट। have learned it. If you will ट्रू। drive the car, ultimately what will happen? You will bang the car also and you will bang your head also. खुद भी मरेगा, बाप का पैसा भी डुबाएगा और खुद भी मर जाएगा। सिंपल बात है। तो बेस्ट वे क्या है? बोले ड्राइवर रख ले। तो ड्राइवर रख ले माने तो म्यूचुअल फंड को तू ले ले, और म्यूचुअल फंड बिल्कुल। का जो पायलट है, वो कैप्टन है, वो तुम्हारा ड्राइवर है, तुम्हारे लिए लग्जरी है। अब सारा जो भी तुम्हारा टेंशन है, ये गिर गया, वो गिर गया, वॉर हो गया, यूक्रेन का हो गया, इसराइल का हो गया, ट्रम्प का हो गया, वो म्यूचुअल फंड के मैनेजर पर छोड़ दे भाई। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अभी तुम ड्राइवर को जाकर अगर हर समय आप बोलेंगे लेफ्ट ले लेफ्ट ले, अरे इधर से क्रॉस कर क्रॉस कर, अरे राइट, कई कई आदमी होते हैं पीछे बैठ कर भाषण झाड़ते रहते हैं, लेफ्ट ले ले राइट ले ले, तो जी क्या जी। होगा? वो ड्राइवर भी छोड़ के चला जाएगा, वो गाड़ी बिड़ा देगा, बोले चल तू चला भैया अभी करने का। करेक्ट, तो जो एक्सपर्ट है चुपचाप, उनको विनर। जो एक्सपर्ट है भैया चुपचाप उसकी सुन, उसको चुपचाप ब्लाइंडली उसको तू फॉलो करो उसको। तो बिल्कुल। ये मैं हमेशा लोगों को ज्ञान देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। एक बार मैं ऐसे ही सोचा यार, कोई मेरे को पूछने वाला है कि खुद तो बेटा इन्वेस्ट करता है डायरेक्ट, और हम लोग हाँ को जी। ज्ञान दे रहा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो बिलीव मी, मेरे को 1 साल पहले ऐसे रियलाइज हुआ कि शायद मैं जब बॉम्बे में नया नया आया था, तो मेरे को लगा कि मैंने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। अच्छा। हाँ, और म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक सो, अभी जो उतना 90 पहला इन्वेस्टमेंट किया था 1995 में, 10,000 रुपया। ठीक है, मेरे लिए 10,000 रुपया भी बड़ा था। सुबह सही। 1995 में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। और और 98 में 20,000 रुपया इन्वेस्ट किया, फिर 2000 में कोई 40-50,000 रुपया किया, फिर 2004 में लाख 1.5 लाख रुपया, ऐसे करके कोई 3 लाख रुपया कुछ इन्वेस्ट किया होगा मैंने 2005 10 साल के अंदर में, ये समझिए आप। तो अच्छा। मैं वो भी इसके लिए शायद इन्वेस्ट किया था, एक ऐसे ही कि हाँ भाई ठीक है, म्यूचुअल फंड नया नया आया था 94 अच्छा। 3 4 5 में, कुछ आप लोग आए हाँ जी, म्यूचुअल फंड बिल्कुल। का जो आया। बिल्कुल। सबसे पहला शायद आईसीआईसी ने, बगुल जी ने, किसने निकाला अपने होटल में बैठ कर, मेरे को याद है, म्यूचुअल फंड सेबी ने बोला हम करेंगे, जो भी है उसको उस पर नहीं जाते हम, ऐसा वैसा कुछ भी था जो भी था। तो म्यूचुअल फंड आया उस समय, तो मैंने वह कर लिया कि ये लोग कौन सा शेयर्स लेते हैं इसके बारे में मेरे को मालूम पड़ेगा। हाँ। कि आप जो शेयर्स वेयर्स आप लिस्ट भेजते हो बाद में कि हमने ये किया, फैक्ट वो शीट जी। बेचा, ये लिया, वो किया, जी। तो क्या बोलते हैं उसको आप? फैक्ट शीट जो होते हैं, मंथली फैक्ट फैक्ट शीट हम। शीट। हाँ, तो मतलब वो आएगा तो उससे मेरे को मालूम पड़ेगा। उस समय तो इतना सोशल मीडिया वगैरह कुछ था नहीं, टीवी टावी में इतना कुछ होता नहीं था। तो आइडिया बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड वाज दिस ओनली, देन आई विल गेट टू नो द नेम ऑफ द शेयर्स वेयर ऑल दिस इन जी। दिस म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टिंग। So I will see to it. I never follow anybody, let me tell you. Just हम्म। because somebody has bought, even is the करेक्ट। biggest investor of India, if he has bought some shares, I will never buy that shares. So that is, मेरे को लग रहा है कि अपना रास्ता खुद ही बनाने का लाइफ के अंदर जी में। जी। करेक्ट। Nothing against them, of course. They are very. I am nowhere compared to what other big investors are there in this market. That I understand very well. तो मैंने इसको बोलकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। तो मैंने लास्ट ईयर ऐसे निकाला कि अरे 10-20 हजार रुपया कुछ इन्वेस्ट किया था, जरा उसका निकालते हैं ना, उसका देखे। हाँ। तो मैंने देखा वो 10,000 10,000 20,000 करके 3 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, और वो 3 लाख रुपया मेरा 1 करोड़ 20 लाख रुपया हो गया। 3 लाख तो रुपए, 1 करोड़ 20 लाख। 3 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 80 लाख रुपीज माय बाय गॉड। 2024। सो हम्म। मैं बोला, मैं सोचा ये क्या हो रहा है, निकाल कर दिया मेरे अकाउंट में, मतलब क्या है, ठीक से देखता हूँ ये 11 लाख है कि क्या है, ये कैसे क्या है। तो कई बार उसको पढ़ा मैंने, इट इज 1 करोड़ 80 लाख रुपीज, 1 करोड़ 18 तो हाउ कम। सो आई जब तब उसको थोड़ा फिगर आउट किया, तो 95 में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था म्यूचुअल फंड में, दैट गेव मी रिटर्न ऑफ 86 टाइम्स। माय फिनोमिनल। 95 में 10,000 रुपया है, आई हैड इन्वेस्टेड ओनली 86 टाइम्स। 98 में जो इन्वेस्टमेंट किया 54 टाइम्स बाय 2024, मैंने कभी बेचा ही नहीं। 2000 में जो किया वो भी मेरे को कोई 25 गुना दिया। ऑन एन एवरेज अगर मैं सबका, और 2005 में लास्ट इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें शायद लाख रुपया कुछ किया होगा, सब मिला मिला के ऐसे कुछ ध्यान में आता है मेरे को, जो भी है। तो वो सब मिला के मैं देखता हूँ, तो मेरे को आई गॉट ए रिटर्न ऑफ 18% CAGR in last 22 years. So फिनोमिनल। 18% CAGR in last 22 years. CAGR, continuous, every year. 18 per 18, 18 per 18, 18 per 18. Just imagine. This kind of return I have never got into my direct क्या investment बात कर रहे also. हैं आप? अच्छा। एक दो एक दो हम्म। तुक्का लगा अपना। जी 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 जी। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वो एक दो तुक्का लग गया, लेकिन मैं बोलूं पूरा भूखे मेरा अगर ऐसा हो गया तो ऐसा नहीं है।
So this is a phenomenal return. 18% return. Just imagine CAGR for 22 years. It is not for 2 years or for 3 years or 4 years, then it is all right. But 22 years. और उसमें ऐसे ऐसे हैं कि 86 टाइम्स रिटर्न. तो मैं रियलाइज किया, तो मेरे मन में आया सब छोड़ छाड़ के मेरे को म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देने का मेरे को. Why should I take all this tension, you know? So the kind of return I'm getting in mutual fund. लेकिन ठीक है, those time were little different. उसमें मार्केट भी इतना नहीं था. अभी आज 22 लाख आपके समझिए डीमेट अकाउंट खुल गए हैं. 12 करोड़ 22 करोड़. अब मार्केट चेंज हो गया. अब रेवोल्यूशन आ गया है स्टॉक मार्केट के अंदर में. So this is the story of my mutual fund investment. So I am a crorepati in mutual fund. This is what I want to tell all these 691 people joining now. That just by investing into mutual fund, the money which I had forgotten also. So that is making me a crorepati today. And that the worth is 1 crore. Yeah, I think this is very, very inspiring, sir. Very, very inspiring. और that proves कि आज म्यूचुअल फंड, आज कोई भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनको अगर इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में करते हैं, लंबे समय तक रखना है, और वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वेल्थ क्रिएट होगी. 18% से एजीआर की जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप रूल ऑफ 72 से देखें तो हर 4 साल में वो पैसा डबल हो रहा है. पैसा डबल हो रहा है. हर 4 साल में पैसा डबल हो रहा है. आई थिंक फिनोमिनल एक्सपीरियंस ऑफ म्यूचुअल फंड, और आपने खुद वो एक्सपीरियंस किया है, तो ये तो बहुत अच्छा मेरे सामने है. मैं किसी एग्जाम्पल दिन इसको पब्लिश करूंगा कहीं भी टीवी चैनल पे. देखो 30 टाइम्स रिटर्न दिया भाई. 3 लाख रुपया का मेरा 1 करोड़. 30 टाइम्स रिटर्न म्यूचुअल फंड दिया मेरे को. नहीं, आपका नेक्स्ट सॉन्ग का आपको मे बी दिस इज वन वन थीम व्हिच कैन रन इट. नहीं, आई थिंक बहुत ही बढ़िया आपने एग्जांपल दिया, और आई एम श्योर ऑल हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं जो जुड़े हुए हैं अभी, उन सब के लिए भी एक बहुत अच्छी स्टोरी उनको मिली है. और जब इन्वेस्टर्स के साथ में वो डील कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज ऑफ वेरी हेल्पफुल टू कन्विंस देम टू स्टे इन्वेस्टेड. बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा आपने टेम्परामेंट की भी बात की, कि आज इन्वेस्टर्स होते हैं, कई इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं, वोलेटिलिटी होती है, इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो ड्रॉडाउन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. तो आई थिंक क्लियरली लंबे समय तक ड्रॉडाउन रहेंगे, मार्केट वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लंबे समय तक अगर रहेंगे तो मार्केट में पैसा बनता है और वेल्थ क्रिएशन होती है, उनके गोल्स अचीव हो सकते हैं. ऑल्सो विजय जी, आप तो पिछले मोर देन 3 डिकेड्स यू हैव बीन इन्वेस्टिंग, और आप कैपिटल मार्केट को भी इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं. तो हाउ डू यू सी दिस इंडियाज कैपिटल मार्केट नाउ इवॉल्विंग, म्यूचुअल फंड मार्केट इवॉल्विंग? आपको क्या लगता है नेक्स्ट 20 साल में ऐसा वो इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द चेंजेस व्हिच यू सी, हाउ डू यू सी दैट इवॉल्व? देखिए, मेरे को क्या लगता है, जो पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मैं बताया, जो शेयर किया, जो मेरे दिमाग में रहता है कि एज लॉन्ग एज देयर इज अ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, economy is growing, you cannot go wrong in the stock market. You cannot go wrong into the market. This is what Germany has taught us. This is what Japan has taught us, and this is what other countries have taught us. तो मेरे को लगता है कि अभी जो ये इंडिया का जो सेकंड फेज जो है इन्वेस्टमेंट का, ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ. इंडिया का रेवोल्यूशन, आई एम टेलिंग यू, मेरे को ऐसे लगता है अभी रेवोल्यूशन शुरू हुआ. अभी तक ये गाड़ी जो थी इंडिया की, दैट वाज गोइंग इन ए, वो क्या हाईवे के बाजू में क्या बोलते, सर्विस रोड, करेक्ट. ये सर्विस रोड पे गाड़ी चल रही थी, या पगडंडी पे, सर्विस रोड पे, या छोटी रोड पे गाड़ी चल रही थी. नाउ वी आर अप्रोचिंग हाईवे. आप नंबर देखिए ना, मेरे बोलने से समझ जाइए. आप जस्ट इमेजिन, एज फ्यू मिनट्स बैक एज आई सेड दैट 22 करोड़ 23 करोड़ डीमैट अकाउंट, 11 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर. जस्ट इमेजिन 11 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स इसके अंदर. तो म्यूचुअल फंड में कितने हैं? मुश्किल से 5 करोड़ मेरे ख्याल से. 5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर 5 करोड़ है, फोलियोस 23-24 करोड़ है, यूनिक इन्वेस्टर 5 करोड़ है. अपने यूनिक इन्वेस्टर्स की बात करें, क्योंकि मैंने भी जो इन्वेस्टमेंट किया 6 कंपनी म्यूचुअल फंड में किया है, समझिए, लेकिन इन्वेस्टर में एक, तो यूनिक इन्वेस्टर 5 करोड़. इंडिया के अंदर में बैंक अकाउंट होएगा, मेरे को लगता है 90 करोड़ बैंक अकाउंट होंगे इंडिया के अंदर. 85-90 करोड़ बैंक. एक मैंने टीवी पर बोला था मैंने 1 साल पहले कि 85 करोड़ 90 करोड़ बैंक अकाउंट है. जितने बैंक अकाउंट है, अभी क्या एक फैशन आ गया है, ठीक है, कि जितने बैंक अकाउंट होंगे उतने आपको डीमैट अकाउंट भी आपको होंगे. क्योंकि जो आदमी अभी, तो ये कल्ट शुरू हो रहा है, आप समझिए, इंडिया के अंदर में, कि भाई आपके पास में बैंक अकाउंट है. जैसे अब 25 साल 30 साल पहले पूछते थे लोगों को, बैंक अकाउंट ही नहीं था. अभी सरकार ने जाकर, समझिए, अभी वो निकाला है जनधन योजना या क्या है, जो भी बैंक अकाउंट जो कुछ निकाला ना, बैंक को जो भी करते हैं, बैंक लोगों को बैंकिंग में लाने के लिए अभी किया. 10 साल अभी गवर्नमेंट आके चालू की है. तो अभी तो बैंक अकाउंट भी लोगों के पास में पूरे नहीं है, अगर समझें तो इसको. तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है.
मेरे को लग रहा है ये जो 5 करोड़ अकाउंट है ना, मेरे को लगता है ये क्यों नहीं 50 करोड़ अकाउंट हो। 10 साल लगे इसके अंदर में, 15 साल लगे, मालूम नहीं मेरे को। और दूसरा जो आप लोगों का अभी ये क्या 29,000 रुपीज, 29,000 करोड़ पर मंथ आता है आपका, बराबर है? SIP का 27-28,000, हाँ जी। 27। मेरे 77। को कई बार हंसी आती है कि हम लोग ऐसे बातें करते हो, 8,000 करोड़ आ गया, 8,000 करोड़ मैंने 3.5 बिलियन हो गया, 3, 3.5, 4 जी, रुपया। करेक्ट करेक्ट। भाई 4, 4.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट में आप मेरे को बताइए क्या है? 29,000 करोड़, 27,000, 3 बिलियन, 4 बिलियन आपका आता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा नहीं इस बोलकर अच्छा लगता है कि रेगिस्तान में जी। पानी मिलता है तो लगता है अमृत मिल गया हो, वो दूसरी बात है। मेरे को लगता है ये नेसेंट स्टेज के अंदर में ये 29,000 करोड़, मैंने सीएनबीसी पे बोला था मैंने 1 साल पहले, उसमें 15,000 करोड़ आता था। तो एंकर ने हम्म। मेरे को पूछा कि 15,000 करोड़ दिस दिस मंथ वी हैव गॉटन फ्रॉम द म्यूचुअल SIP। फंड, हाँ। SIP 15,000 करोड़ है। मतलब यार तू 15,000 करोड़ की बात करती है, 1 लाख करोड़ आएगा ये क्या 15,000 करोड़ का बात कर रहे हो आप? ये 1 लाख करोड़ आना चाहिए। आप सिंपल समझिए, मेरे को लगता है बहुत बड़ा फ्यूचर है हमारा। 20% हमारा सेविंग्स रेट है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने वाले हैं हम लोग। 1 साल 1.5 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे। 20% की सेविंग्स रेट है, मैंने 1 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन डॉलर आप 1 ट्रिलियन। एवरी एवरी ईयर आप सेव करोगे। आएगा ना अल्टीमेटली आपके म्यूचुअल फंड में, सिप में, इधर उधर शेयर बाजार में आएगा ना, उसका 10-12% भी अगर आ जाता है आपका, तो भी आपका बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो मेरे को लगता है, और आपको क्या लगता है ये कितने जितने भी ये फिरंगी लोग हैं, ये पूरा मार्केट को कैप्चर किया 20 साल से, अब ये लोग बेचे जा रहे हैं 2 से 3 साल से, और मार्केट ऑल टाइम आपके पास में है। ये ताकत किसकी है? ये Yes, रिटेल इन्वेस्टर की है कि बिल्कुल। उन्हीं की ताकत के पीछे ये मार्केट खड़ा। तो ये अपने को प्रत्यक्षम किम प्रमाण है, ये अपने को प्रमाण बता रहा है कि इंडिया में क्या चेंज हो रहा है। अब रिटेलर किंग है ना मार्केट के अंदर में भी, जो बिल्कुल। रिटेलर जो है तो ये किंग हो गए। तो ये एक कल्ट है जो मेरे को लगता है ये 15-20 साल 25 साल ऐसे ही चलने वाला है। ये रेवोल्यूशन है म्यूचुअल फंड में, इट्स बिगिनिंग। तो ये तो बहुत अभी शुरुआत हुई है, आप बोल रहे हैं ट्रेलर है, अभी पिक्चर भी बाकी है। हाँ हाँ एकदम अभी बाकी है, जिस हिसाब से लोगों को अभी वो आ रहा है कि कल्ट हो रहा है, तो वो बाकी है अभी। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए और इसलिए जो हमारे जो जितने पार्टनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं, उनके लिए तो ग्रोथ ग्रोथ तो गिवन है। तो सबको अपने बिजनेस को किस तरह से हम 50x 100x ग्रो कर सकते हैं, उन हम्म। चीजों पे ध्यान देना है, रादर देन कि ग्रोथ तो इज नॉट अ क्वेश्चन, ग्रोथ तो होना ही होना है, बट आर हाँ। वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ग्रोथ इज समथिंग एज ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड, दे नीड टू इन्वेस्ट इनटू देयर बिजनेस एंड ग्रो इट। यस। विजय जी, ऑफ कोर्स हमारे पार्टनर्स हैं, 700 से ज्यादा पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस उनसे लेना चाहेंगे, and of course, and then we will ask you one final request which we all have, but श्योर। कुछ questions आपकी अनुमति से we will take. So any questions, dear partners, if you have कोई भी क्वेश्चन अगर आप विजय जी से पूछना चाहें, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन एंड वी विल बी एबल टू आस्क दैट। तो आपकी सिंगिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं सब लोग, और प्रेज कर रहे हैं कि दैट रियली हेल्प्स देम। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जो वोलेटिलिटी, तो ऑफ कोर्स मार्केट का नेचर है, लेकिन व्हाट शुड बी द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 3 years इन दिस मार्केट? यू आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, राइट? हाँ, मतलब मार्केट को लेकर एक जनरल, अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, या एनी एनी योर पर्सपेक्टिव्स। तो मैं सबसे पहले तो देखिए लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप मार्केट में 5 साल तक अगर आपने यहाँ पर फेलियर नहीं देखा है, अगर आपने 5 साल तक फेलियर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, 5 साल तक अगर आप लोगों ने मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में फेलियर नहीं देखा है, लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, तब तक आप हम्म। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग मत करो। 5 साल घुसने के बाद में अगर आपने फेलियर देख लिया है, अगर आपने, देखिए मेरा एक कोट है कि व्हेन यू आर राइट यू अर्न, व्हेन यू आर रॉन्ग यू लर्न। तो हम सीखते जब ही है जब हम रॉन्ग होते हैं। ठीक है। तो जी जो 21 22 23 का जो मार्केट जो गया था ना उसके अंदर में, जी। उसमें किसी ने कुछ सीखा नहीं है, उसमें सबने पैसा कमाया है। सो इट करेक्ट। इज लाइक पुशिंग ए रनिंग ट्रेन, यू नो, द रेन जिस जिस ट्रेन जिस दिशा में जा रही है, उसको if you push, आपको लगेगा दैट यू वो, आर पुशिंग द ट्रेन। हाँ, वो ट्रेन ही जा रही है लेकिन। वो ट्रेन ही, हाँ वो ट्रेन ही जा रही है, अपने आप में जा रही है। तो दिस इज व्हाट हैपेंड दिस मार्केट इन लास्ट 3 4 years, whatever हम्म। they did, they made money. So don't करेक्ट। take as a certificate that now you become a smart investor and now you can win the market. So
ऐसा हम्म। वैसा ये कुछ सोचने का वो सब आप मत करो। इन नया आदमी अगर है तो उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सिप से अपना शुरू करना चाहिए, अपना काम म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। और 3 4 5 साल यहाँ पर मार्केट में लगाओ, मार्केट के निटी ग्रिटी को समझो, देन वन शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू दिस मार्केट। पहला हम्म। बात तो ये है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये तो हर समय यहाँ पर बदलता है, जैसे बोलते हैं हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी ये धूप जिंदगी। तो करेक्ट। तो ये तो मार्केट का ये सब चलता रहेगा मार्केट के अंदर में। मेरे को अगले 3 4 साल के लिए समझिए, अगले 5 10 साल का जो थ्योरी मेरे को लगता है मार्केट के अंदर में जो थीम जो चलनी चाहिए, वो मेरे को एक लगता है कि जैसे एक टूरिज्म की थीम चलनी चाहिए। मैंने लास्ट बजट में भी बोला था, जब ये बजट आया था तब भी मैंने टीवी जी। पे बोला था कि टूरिज्म का जो गवर्नमेंट का फोकस जिधर होता है ना, वो सेक्टर बढ़िया करता है। So now government is focusing on tourism in full swing. Now government has understood this thing that we in India you have got everything. Now you have desert also, you have snow also, you have rivers also, you have करेक्ट। heritage also, you have everything in here in India. The only problem is this: we do not have connectivity. Means we do not have infrastructure. To go to those places. Now government is focused the way infrastructure is happening in here in India. I think this tourism will be in the forefront. दिस सेक्टर शुड, एंड दिस इज अगेन 4 5 दिन पहले भी किसी ने बोला है कि देखो हमको ये ट्रम्प हम का छोड़ो, हमारे जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसी पर अगर हम हाँ। फोकस करें, अगर हम करेक्ट। इंडिया के टूरिज्म के अंदर अगर हम फोकस करें, तो हमको जरूरत नहीं, जितना पैसा हम बाहर जाकर खर्चा करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हम खर्चा करते हैं, हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उतने रुपए की। बिल्कुल सही सो बात है। और यहाँ पर सब कुछ है यहाँ पे इंडिया के अंदर। सो I think tourism is the next big thing for next 5 10 years. There's one mega trend you are saying. Mega trend. I think it's a sunrise industry. There is a code of mine that stay invested in a sunrise industry at any cost. Stay out of a sunset industry at any cost. तो मेरे को लगता है दिस इज अ सनसेट इंडस्ट्री। तो इसके अंदर में बीच में जैसे मैंने बोला मैं निकलता नहीं हूँ, 50% ड्रॉ डाउन हो गया, अगर एज लॉन्ग एज इंडस्ट्री इज राइजिंग, आई डो नॉट गेट ऑफ द ट्रेन। सो करेक्ट। आई थिंक दिस टूरिज्म शुड डू वेल। सिमिलरली लाइक टूरिज्म में फिर हॉस्पिटल्स भी, होटल्स भी आ जाते हैं टूरिज्म के अंदर में। ट्रू। So of course, hotels are already doing well. All the stocks, hotel stocks are rising, and I think since because of our population and rising population, also I think this hospital industry should also do well. But ओके। stocks in these sectors are expensive, and in hospitals, even in tourism also. But whenever you find some dip in the market, that is the time that you should get into that. And infrastructure stock should also do well. I think still ओके। India is still underpenetrated so far infrastructure is concerned. जी। And plus, nowadays I am more focusing on startups, let me tell you, because I अच्छा। have sold some shares in the market. I am sitting in the cash, and I am looking for the opportunity in deep tech, in technology companies and all, not ओ, listed, unlisted front. So I जी। think this deep tech is also having a very bright future. As we all know that we are not a product country. We are just a servicing country. Whatever करेक्ट। in IT, whatever we have done, we have just served the other countries and other companies. And this is what all these companies have been created here in India, चाहे Infosys हो या Wipro, ये सब हो। नाउ टाइम की अभी कुछ प्रोडक्ट आना चाहिए इंडिया के अंदर में, तो वो एक अलग सनराइज इंडस्ट्री होगा उसमें, लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, बिकॉज दैट इज लिमिटेड टू द VCs and all these ट्रू। private equity investors, PE funds and all. So if you can get some good PE fund or some if investors can get, that should also do well. This is what I am doing for myself. This is what I'm sharing with you. ओके। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स के साथ में डील करते हैं। आप जैसे आपने पहले बताया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद में आप एक्सपीरियंस लेके फिर आप अगर आपको कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करना है, लेकिन आपको मालूम है आजकल का जो ट्रेंड है वो रिवर्स है। तो वो स्टार्टिंग फ्यूचर इन ऑप्शन से होता है और ट्रेडिंग से होता है। इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है और फिर म्यूचुअल फंड बाद में आता है। तो हाउ डू आवर पार्टनर्स कन्विंस, क्योंकि आज चाहे सेबी की भी स्टडीज, रेगुलर सेबी भी स्टडीज कर रहा है, स्टडीज पब्लिश कर रहा है, और क्लियरली हम सबको मालूम है कि मोर देन 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स एक्चुअली लॉस्ट मनी इन FNO, इन ऑप्शंस। बट स्टिल एक वो जो ट्रेंड है, तो वो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं, इस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको कैसे कन्विंस करें आपको? हाउ डू यू सी, बिकॉज दे वांट टू मेक क्विक मनी एंड दे सी दैट एज वन मीडियम। तो उनको बोलिए कि जब पॉलिसी या जो भी बेचने जाते हैं उस समय, तो मेरे गाने की लिस्ट लेकर जाए उनको। सबसे पहले उनको घर बैठे उनके ऑफिस में चाय कॉफी पिए और मेरा गाना सुनाए उन लोगों को।
तो वो जी। गाने, आप ये सब बात करते करते मेरे को एक गाने का अंश याद आ रहा है, वो मैं सुना देता बिल्कुल। हूँ, कोई कहीं ने लिख कर भी बिल्कुल। भेजा है, गाना बिल्कुल गाने का। प्लीज सर। तो फ्यूचर ऑप्शन लिवरेजिंग सबके वश की बात नहीं, पेनी स्टॉक से दूर रहो, इनकी कुछ औकात नहीं, टिप को छोड़ो, सिप को जोड़ो। बहुत। मार्केट गिरता है तब भी इन्वेस्ट कीजिए, ओ मेरे मार्केट में, ये कसीनो नहीं है समझ लीजिए। तो उनको बोलिए जाके, पहले मेरे तीन बिल्कुल। चार गाने जो म्यूचुअल फंड में गाए हैं उनको बोलो भाई, मैं जिंदगी यहीं जिया हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा। और उसके बाद में अगर मैं ये कहता हूँ कि भैया ये सब फ्यूचर ऑप्शन में पैसा कमाना मुश्किल है, और पेनी स्टॉक में पैसा कमाना मुश्किल है, आपको उस चीज का आइडिया नहीं है, वो पैसा कमाना मुश्किल है, जिस रास्ते को आप जानते नहीं हो उस पर जाना मुश्किल है, अगर आपको ये मालूम है तो धंधे में लेकिन आप क्यों जाना चाहते हो आपको। लेकिन लोगों को क्या है कि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि बिना मरे बिना स्वर्ग नहीं है, हाँ। तो वो जब तक वो पतंगा जब तक जलेगा नहीं तब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि अरे भाई मैं तो जल गया। लेकिन पतंगा तो जल जाता, तो भाई ये कि इस मुल्क का जब तक वो थोड़ा सा, ये लोगों को समझना है, इतिहास से यही सीखने का आपको, डेटा से यही सीखने का, लोगों के अनुभव से यही सीखने का आपको, कि जी। देर इज नो वे दैट anybody coming to the market for the first time without any proper knowledge, without any experience, can make money in direct investing. I think it is not possible. In 90% cases it is not possible. It is worse than even the future trading also, let me tell you, because ट्रू। future trading, हाँ फ्यूचर, लेकिन ठीक है, वो दोनों सिमिलर ही है वो। सो जुए में और इसके अंदर में, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन gambling and between investing. In gambling you don't know what is going to come, which cards are going to be played out. In here in investing you have actually some data, okay, this is the company profile, this is the likely outcome, this is the what likely future. You may go wrong also, but your money will not become zero until unless you are really invested in some bhangar ke bhai, I say. So all this is a learning process, ये अनुभव का गेम है स्टॉक मार्केट बिल्कुल। में। सबसे ज्यादा अगर वन थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज एक्सपीरियंस। सो बेटर एक्सपीरियंस। लर्न फ्रॉम अदर फेलियर इन दिस मार्केट। नहीं यार, आपने बिल्कुल सही बोला कि आपके जितने भी जो गाने हैं ये सब आपके एक्सपीरियंस का निचोड़ है। और या वो सब जो मैसेज आपके जो गाने हैं इनमें इतना पावरफुल मैसेज है विच इज कमिंग थ्रू योर मोर देन 3 decades ऑफ एक्सपीरियंस। और सक्सेसफुल इन्वेस्टर लाइक यू, जब आपके वो गाने, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी संदेश दिया है सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि आप वो गाने सुनाइए ताकि वो एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस है उससे शायद उनको समझ में आएगा कि नहीं, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड और के थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए। तो आई थिंक दैट शुड हेल्प ऑल या आर पार्टनर्स। एक और सो क्वेश्चन है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स का, पार्टनर्स का, कि आप आपने स्माइल फ्रेमवर्क के बारे में बताया तो वो आप डेफिनेटली उसको यूज करते हैं कि आप किन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें। तो एक होता है एंट्री की भी, हमने किस कंपनीज में इन्वेस्ट किया, लेकिन एक दूसरा पार्ट है इन्वेस्टमेंट का अगेन इन टर्म्स ऑफ एग्जिट। तो कैसे आप वो सेलिंग का डिसीजन कैसे लेते हैं? तो सेलिंग के डिसीजन में, आई हैव सेड दिस मेनी टाइम ऑन वेरियस चैनल्स व्हिच आई विल जी। रिपीट हियर। सो that's a unique example. I think people liked it, that way I'm saying unique. So this I learned from Vibhishan in Ramayana, you know. अच्छा। So Lanka was a triple A company. Lanka was like a triple A company, Sony ki Lanka thi. So that means जी। triple A, correct. Corporate governance, everything was in order, and company was making beautiful, wonderful profit. That is why it could create a gold का सब कुछ बन गया वहां पे। जी। एंड रावण वाज द लीडर, मैनेजमेंट जो था वो भी ट्रिपल ए मैनेजमेंट ही था, फुल ट्रैक, सब बिल्कुल। बढ़िया, सब ट्रैक रिकॉर्ड था, सब कुछ था। एंड विभीषण वाज द शेयर होल्डर, being a करेक्ट। mantri of that cabinet, or being the brother of Raman, or whatever it is, he was a shareholder and a contender of the future king also. उसका कम से कम एक ये था। जी। So shareholder था, this is what. So what happened, no, when he realized that the focus of the management has changed, हम्म। the time came because ओ। of the Sita and all, then तो उसको ये समझ में आ गया कि मैनेजमेंट का फोकस चेंज हो गया। तो करेक्ट। मैनेजमेंट का फोकस चेंज हो गया तो ये मरने वाला है, ये समझ में आ गया उसको, यू नो। तो उसने क्या किया, वो ट्रिपल ए मैनेजमेंट को बेच दिया। और उसने क्या किया, जो ट्रिपल ए मैनेजमेंट था अयोध्या का, वो जब क्राइसिस में था, उसने उस मैनेजमेंट में जाकर इन्वेस्ट कर दिया उसने, अपने पैसे को उधर से निकाल कर। क्या बात। तो उधर वो इन्वेस्टमेंट किया, जब टाइम बदला और तो वो वहां का राजा बन गया, यू नो। सो ये आप चीजों को अगर ध्यान से अगर देखोगे तो मार्केट में भी यही होता है
I applied the same theory in one company. It's a tea company. It was second largest tea company in the world. And I had bought 1% of company or whatever it is, a reasonable amount according to my okat or my capacity. It was a good investment I had made. And after my investments, maybe 6 months, maybe after 1 year or so, I got to know that now company is diversifying into sugar business, and they are buying some sugar company in Bihar. So there I applied this, applied my mind, and I thought that sugar and tea, Tea. both are cyclical. Okay. Mhm. So a company diversifying, a cyclical company diversifying in another cyclical City. company is not a good idea. This is what I thought. So, but I waited. Okay, let me see what is the development. And second thing, they bought company not in Uttar Pradesh, they bought in Bihar. Uttar Mhm. Pradesh is understood, is termed as the Sugar bit. हाँ. sugar belt, right? Not Mhm. Bihar. So Mhm. they bought the company in Bihar because they were getting it cheaper. So it was not the wisdom that they bought. They bought just because they were getting a cheap deal. And of course, why somebody was selling cheaply? He had understood कि इधर कुछ इसका future is not good वहाँ पे. So that was a red flag. So then I went to the AGM, and there I got to know that company people were talking in themselves. Now they are planning to buy some milk company in in Right. in London. So again, milk, and there is no, what is Correction. the connection between the sugar and uh, tea Milk. and milk? So I Hmm. realized now this company is going to open tea stalls. टी का शॉप खोलने वाला है कंपनी अब चाय बना के. Okay. I thought, मैंने मजाक में बोलता हूँ कि जी. ना ये क्या कर रहे हो? तो I sold all my shares. You know, if I remember that time, price was maybe somewhere around 300 or something. I sold whatever shares I had bought in loss. I bought. Shares went down to 10 rupees. Stock price came down to 10 rupees in 2-3 years time. और कंपनी पूरा दबा हो गया. You know, so this is what people learn. People should understand कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो बाजा बाजे. जिसका सही. जो एक्सपर्टीज है ना है, there is a quote of mine. Never learn literature from history teacher. So always remember this thing. So Hmm. if a tea company, a pioneer in tea, like a automobile company is going to manufacture tire, don't invest in that company. Because although there is a connection between automobile, between a tire and a four-wheeler, but both Both products of are different. तो दिस इज व्हाट दैट इज द एग्जिट. तो मैनेजमेंट खुद आपको एग्जिट के आपको कभी कभी आपको कहानी खुद आपको बताता है. तो आप वो फ्यूचर में क्या करने वाला है, इफ यू फोकस ऑन दैट, यू विल रियलाइज कि भाई इस कंपनी का काम हो गया, मेरे को इसमें इन्वेस्ट नहीं करने का. बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मतलब जिस तरीके से आपने सिंप्लीफाई किया है उसको, लेकिन बहुत ही पावरफुल प्रोपोजिशन है. मैनेजमेंट क्वालिटी, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, वो ही मतलब उस कंपनी में भी स्टे इन्वेस्टेड रखना है. कितना ग्रोथ होगा वो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, क्या वो कर रहे हैं, उनको समझ के आप कर सकते हैं. और विच वी कैन अप्लाई इन एनीथिंग. आप इन म्यूचुअल फंड में एनीथिंग. भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाँ. म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से वो फंड्स को मैनेज कर रहे हैं. आई थिंक बहुत ही पावरफुल. थैंक यू वेरी और मच. इसीलिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, आप लोगों का पास ये स्मॉल कैप फंड है, ये मिड कैप जी. फंड है, ये फ्लेक्सी जी. कैप फंड है, राइट? आपका एक ऐसा वो जी. डेडिकेटेड ऐसा कैटेगरी. रहता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. करेक्ट. तो आप इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मेरे को 5 फंड में इन्वेस्ट करने का है, समझो. अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आई वुड लाइक सेफ बेट, आई वुड गो फॉर लार्ज कैप, तो लार्ज कैप वाले में इन्वेस्ट कर दो. किसी में डेट का भी रहता है और इक्विटी का भी रहता है. 25% डेट है, 75% इक्विटी है. उसको जो भी आप फ्लेक्सी कैप या जो भी बोलते हो आप, जो भी जी. वट. जी. तो ये वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी है ऐसा करने का आपके हिसाब से. यू कैन डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो लाइक दिस. बट ए कंपनी डाइवर्सिफाइंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, that thing is not going to play out. That is going to give you trouble. So that is the time that one should एग्जैक्टली. say bye bye. नहीं नहीं, बहुत अच्छा. तो ऑल्सो एक क्वेश्चन और है जो कि लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि मार्केट में कैसे, कई बार यूफोरिया रहता है, कई बार आपका पेसिमिज्म रहता है. तो ये जो आपका भी जो एक्सपीरियंस रहा है बिल्कुल 3 दशकों से ज्यादा का स्टॉक मार्केट में, बबल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि भी हाँ भी इस समय ये बबल वाला सिनेरियो है मार्केट में. तो इस तरह का क्या कोई फ्रेमवर्क या आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या आप देखते हैं कि हाँ ये मार्केट का भी लेवल ठीक है इन्वेस्ट करने के लिए. स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, लेकिन मार्केट को अगर एक जनरल लेवल पे अगर आप देखते हैं, असेस करते हैं, तो वो मूल्यांकन का क्या आपका फ्रेमवर्क है. देखिए, इसका कोई एक फिक्स रूल नहीं है.
I जी. will again tell you something unique is happening in this market after 2021. You know, अच्छा. I am in this market से चलो जो भी 30-35 साल से इस मार्केट में हूँ. आप ये एक चीज देखिए, हम लोगों ने जो पढ़ा था या जो देखा था या वॉट एवर वी हैव लर्न पीपल टॉकिंग, हमारे जो बड़े लोग जो भी मार्केट में आके बातें करते थे, जब आईपीओ में बूम आ जाए तो शेयर बाजार डूबने वाला है. बराबर है. आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो शेयर बाजार डूब जाएगा. दिस इज व्हाट वी हैड बीन टॉट इन माय करेक्ट. जनरेशन. ठीक है. उससे मैं हार्डली साल में 3 या 4 आईपीओ आते थे. ठीक है. आज जी. हफ्ते में 2-3 आईपीओ आ रहे हैं. करेक्ट. बराबर बात है. तो ये थ्योरी उस समय निकाली गई कि जब आईपीओ का मार्केट आ जाए ना, तब समझ लो शेयर बाजार मार्केट डूबने ऊपर वाला है. लेवल पे है. हाँ. नहीं, डूबने वाला मार्केट वो डूबने लास्ट में वाला. आता है. हाँ, जी. ये थ्योरी था. ये आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, पहले ये चलता था. ब्रोकर्स ऑफिसेज आर फुल, ऐसा बोलते थे जब, कि जब ब्रोकर के ऑफिसेज में बाहर क्लाइंट खड़े हो जाते हैं तो आप समझ लो रिटेलर आ गए. तो अब ये मैंने उनको ऐसे लगता था रिटेलर माने लुटेरे आ गए. उनको ऐसे लगता था उस जमाने में कि जी. ब्रोकर ऑफिसेज आर फुल, समझ लो कि मार्केट पीक आ डूबने गया. वाला है. यू फिर पीक आ गया है. हम्म. दूसरा थ्योरी वो बोलते थे, जब रास्ते में आप जा रहे हो और कोई आपसे बात करने लग जाता है. वो 1929 के अंदर में कोई इन्वेस्टर वॉल स्ट्रीट के बाहर बैठ के पॉलिश करा रहा था, जूता पॉलिश. तो अच्छा. जो जूता पॉलिश करने वाले ने, बूट पॉलिशर ने उसको पूछ लिया, सर ये शेयर अच्छा है, ऐसा वैसा कुछ बोल दिया हाँ. होगा. हाँ जी. तो उसने उस बात को जाकर अपना सारा शेयर बेच दिया. और वहां पर 1930 का बिगेस्ट क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया. करेक्ट. तो हाँ. एक थ्योरी बन गई कि अगर जो छोटे आदमी इस तरह की बातें करने लग जाए कि हाँ भाई स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेने लग जाए, तो आप समझ जाओ कि मार्केट का बेड़ा गर्क होने वाला है. Yeah. ये सारी स्टोरी अभी गलत हो गई. हम्म. जितने आईपीओ 25 साल में नहीं आए होंगे, उतने आईपीओ 4 साल में आ गए होंगे. एक अंदाजन आपको बता रहा हूँ. बिल्कुल. बराबर है. ये बिल्कुल. 22 करोड़ जो यूनिक अकाउंट खुल गए, ये क्या सूट बूट वाले के खुले हैं क्या ये सब? ये बेचारे सही. वो लुंगी वालों के, शॉर्ट वालों के, दुकानदारों के, छोटे व्यापारियों के, छोटे लोगों के, जिनको हम छोटे बोलते हैं. छोटा बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जो भी हम एक अगर भाषा में अगर बात किया जाए, जी. जी. तो उनके खुले हैं ना 12 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर जो आ गए हैं. ये कौन है 12 करोड़, 11-12 करोड़, 5 करोड़ जो आपके म्यूचुअल फंड के अंदर में, 5-6 करोड़ जो अब यूनिक आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ी ना सब अंग्रेजी बोलने वाले, टाई बोलने वाले और सब वो जो. बिल्कुल. मैं भाई साहब गौरव जी, एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मेरे घर के बाजू में रेस्टोरेंट है. जब बॉम्बे में कम रहता हूँ, जब जाता हूँ वहां पे जी. जाता हूँ, तो वो एक वहां का सिक्योरिटी वाला आकर मेरे से बात करता है. अच्छा. तो वो, हाँ, वो मेरे को साल भर पहले आके मेरे को बोला सर मैं आपको देखा टीवी में, ये वो. बोला अरे यार क्या बात है, तू मेरे को टीवी पे देखा? हमला तू क्या करता है टीवी पे देखा भाई आपने मेरे को? बोला यार सर मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ. बोला अच्छा क्या करता है? तो बोला मैंने ये लिया वो लिया, 1-2 शेयर बताया. मैं उसको बोला अभी क्या करूँ? मैं भैया तू ये सब छोड़ दे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर. ये सब तेरे लायक नहीं है. एक झटका आएगा ना, तेरे सालों की सही. कमाई तेरी ये हो जाएगी. ठीक है. बिल्कुल. तो वो सब तुम काम छोड़ दे. अब मैं जब कभी जाता हूँ, उसको पूछा क्या करता हूँ, बोला सर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ. आपने बताया क्या? ना मेरे. अरे हाँ, वाह. बोला आपने जो भी बताया, 4,000 रुपया, 3,000, 4,000 रुपया जो भी है मेरा महीने का, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ. हाँ. तो ये जो लोग आ रहे हैं इस समाज के, हमारे हम्म. सब जो समाज के जो लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही तो ये बना रहे हैं ना, यही ये माहौल बिल्कुल. बना रहे हैं ना, यही इकोनॉमी को पैदा कर रहे हैं ना, फाइनेंशियल वाला जो है. तो ये सारी स्टोरी सब फेल हो गई है. ये सब कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, तुम होगी तो ऐसा होगा, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तेनाली, अक्सर ये बातें करते हैं. वो सब जमाना गया अभी. ये नया रेवोल्यूशन आ गया है. तो इसके अंदर में मेरे तो आपका क्वेश्चन क्या था? सॉरी, मैं जरा भाषण ज्यादा देने लग नहीं. गया. हाँ, मतलब मार्केट को आप कैसे, आप कोई फ्रेमवर्क है कैसे डिसाइड करें कि हाँ अभी बबल है मार्केट में, अभी चीप है हाँ, मार्केट? बबल है. तो तो ये थ्योरियां खत्म हो गई अभी. जी. ठीक है. तो अभी एक ही थ्योरी बची है. और अगेन मैं बोलता हूं, दैट थ्योरी इज ऑल्सो नॉट फुल प्रूफ. लेट मी टेल यू. हम्म. So what I am applying for myself, जी. as I said, then stock price becomes so expensive, you know, and it does not match with the growth rate of the company. For example, like suppose a stock is trading at a P ratio of 60 and 70. Okay. हम्म. But growth rate in the company is growing at a CAGR of say 10%, 15%, or ओह. 20%. अच्छा. In that company, I will not remain invested. अंडरस्टूड. For me, justify a P ratio of 60-70 should be minimum 25-30% growth rate of the company. The sales and the profit should rise at least 25%, at least 25%. Then I can hold and justify a P ratio of 60 or 70 and all. Usually, I don't buy all these kind of shares which are so expensive. So again, as I'm telling you, I may go wrong. So this is ultimately this is your individual choice, you know. करेक्ट. But
there has to be some benchmark, there has to be some yardstick. So one thing is for sure in this market, whenever I feel like I had invested in one company, telecom company, which I exited, which was quoting at phenomenal P ratio, phenomenal valuation and all, and ultimately the company could not convert whatever the opportunity they had, they could not convert into profit, into bottom line. So I exited the company. Exit करने के बाद में, if you find that आपने exit कर लिया and stock price has gone up, don't regret. That is the only thing one people should learn, that don't regret. There is a code of mine that regret is the lifestyle disease of investing. Regret is a lifestyle disease of investing. It's a lifestyle disease. BP होता है, diabetes होती है, ये होती है, वो होती है, tension होता है, anxiety होती है, पसीना आता है, ये आता है, वो आता है. ये regret यहाँ पर आपका ये आता रहेगा आपको. You buy the shares, stock price goes up, you will not be happy. आपको दुख होगा, मैंने लिया, शेयर प्राइस ऊपर चला गया, मैंने कम क्यों लिया, आपको इस बात का रिग्रेट होगा. बिल्कुल. हाँ, आपने लिया, कुछ रीजन फाइंड आउट कर लेंगे रिग्रेट. You will find your own reason to be unhappy, and this is philosophy also, spirituality also tells us this thing on down. बिल्कुल सही है. Ultimately this is in your mind only. बाकी तो रुपया तो ठीक है, वो सबका तो फिर क्या नंबर है ना, फिर ultimately it is in your mind. So don't regret in this market. You took a decision. I took this decision कि हाँ भाई I have to get out of this company because it's very expensive. I am out of it. Now let others make money na baba. What is there? मैं बोला there are only two people in this market who know top and bottom. So one is God and another is a liar. इनके अलावा शेयर बाजार में किसी को नहीं मालूम है टॉप क्या बॉटम क्या है. तो जब आपको टॉप बॉटम का मालूम नहीं है, आपको अपना लगा डेस्टिनेशन आ गया, you have reached your destination, you have made your enough money, and you think that there is no further assurance of growing this company, or that the company will keep on growing, then you take an exit. तो मैं इसको ये फॉर्मूलों को अभी ऐसा लगाता हूं, तो मैं सस्ती कंपनियां ढूंढने की ट्राई करता हूं, एंड आई लाइक टू इन्वेस्ट इन this kind of companies where valuation is not high. So valuation is one factor which one should always follow, but sometimes it is again also not as simple as I am telling you, as I am saying. It is not simple because sometimes कंपनी का वो वैल्यूएशन चेंज भी होती है, कुछ रीजन होता है कि वो वैल्यूएशन रीजन होता है, रीजन you have to find out. If company is entering into a higher growth orbit, for example, the company had been growing traditionally, company had been growing 10-15% CAGR, but currently due to some government policies or due to some changes, now companies you think that company will grow 25% for at least 4-5 years, then P will shoot up. If it was 20 P ratio, it may shoot up to 60 because people would not like to get into the pie. They would like to miss the chance. So all these things, that's why they say it's a learning process. You know, stock market is a learning process. It's a game of experience. So if you do not understand, if you do not gel with it, invest in mutual fund, buy and buy, keep on learning. If you want to become adventurous and you want to really invest on your own, give some time to yourself, learn things, and then start. I think one of the most successful investors in propagating mutual fund, I think it itself is a very big, win for us in terms of the industry. But I think ये last question आपसे पूछना चाहूँगा विजय जी कि आज आप इतना successful, you are one of the most successful investors in India. आज अगर कभी आप ऐसा सोचते हैं कि वही 35 साल पहले अगर आपको एक रीस्टार्ट मिल जाए कि आपको अभी विजय जी कि अब आप रीस्टार्ट कर सकते हैं and you are back 35 years back, so how different you will start, what are the things which you will not do from your learning, and some key things from your perspective, how do you do that again as Vijay Kedia? So what I will tell you, it took me, if I divide my 35 years of my journey, say in 3 tranches, okay, 11, 11, 11 or 12, 12, 12, whatever. So 1/3 of my investing life, it took me 1/3 of my life to understand that I cannot make money in future and option. It took me 12 years to understand. पहला जो आपका first initial, which are very important. Initial years are very important. You know, so I lost my that initial years, जिसको हम बोलते हैं, जो आपका उसको आप जो भी adolescent बोलो या क्या young age जो भी बोलो आपका. So that
वो मेरा एज मैंने ये समझने में खो दिया कि आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर ऑप्शन। मेरे मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे को समझ में 12 साल लगा। Okay. समझने के बाद में टू इम्प्लीमेंट दैट प्रिंसिपल इन माई लाइफ आई टुक अनदर 12 years। Oh. इट इज सच एन एडिक्शन, यू नो। It took me Hmm. 12 years to understand, to pinpoint that this is not, I should not go to this place. I am going to die if I am going to this place. I understood this thing. Hmm. After understanding also, it took me 12 years to implement it fully. Right. Okay. लेकिन मैंने ग्रेजुअली शुरू कर दिया, यू नो, जी. ग्रेजुअली मैं शुरू कर दिया, लेकिन जो उसका जो भूत, उसका जो एडिक्शन जो था उसका, हाँ. वो ड्रग के जैसे है वो, यू Correct. नो। सो वो मेरा कोट है कि इफ यू आर डाइंग, if you are smoking you may die in 20-30 years, but in future option you might die next day। तो And यहाँ तो next. रोज मरना रोज गिरने का यहाँ पर काम था ये, ठीक है। तो समझने के बाद में मेरे को 12 साल लगा कि मैं मेरे लाइफ में वो डिसिप्लिन लेकर आऊं कि मेरे को फ्यूचर ऑप्शन जीरो करने का है। Right. Okay. सो हाँ, बट मेरे को थोड़ा सा ये हो गया कि अर्लियर 100% आई वॉज डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर ऑप्शन। हाँ. Now, maybe I was 50% I was dependent on future option and It is. 50% in investment, Hmm. but it had always been a drag. Whatever money I would make in my investment from Oh. investment, I would Hmm. lose in future option. My God. Hmm. Hmm. So अगर मैं 10 रुपया कमाता था तो 5 रुपया इसमें खोता था। तो क्या ये बात. ड्रग को साथ में लेकर मैं चलता था। So maybe from 10 years from now behind, अगर आप ये Hmm. पुराना 12 साल अगर मैं 10 साल. जोड़ूं, तो शायद अभी 10-12 साल से मेरे को ये समझ में आ गया, अब नाउ आई एम डिसिप्लिन, यू नो। क्या बात. अब Hmm. मेरे को समझ में आ गया कि हाँ मेरे को ये काम नहीं करना है। तो मे बी 10-12 साल से अभी ये है कि अब मेरा मेरा 99% मैं अभी भी सुधरा नहीं हूँ, वो बोलते हैं। हाँ. हाँ. तो 1% है अभी. 1%, लेकिन अब क्या है ना, वो अभी मैं वो टेस्टिंग के लिए वो कभी कर लिया टेस्ट, और वो भी दो सर. चार 5 महीने में एक बार। अंडरस्टूड. जी हाँ, सर. और वो इतना मिनिमम है वो कि इसमें हम्म. ठीक है, 10-20 हजार रुपया अगर लग गया 25-50 हजार आ गया तो वो ठीक है। हम कोल्ड प्ले का टिकट देखने के लिए चले जाते हैं, लोग लाख रुपया उसमें खर्चा कर देते हैं कोल्ड प्ले के करेक्ट. टिकट में। तो मैं जी. तो हॉट प्ले में अगर उसमें 25-50 हजार रुपया लगा दिया तो ठीक है, आई कैन अफोर्ड इट, यू नो। और वो मेरे को लेसन मिलता है मेरे को कि नहीं, जैसे पिताजी आके बोलते हैं बेटा जाने का नहीं, इस रास्ते में जाने का नहीं। दिस इज व्हाट पीपल शुड अंडरस्टैंड। दिस इज कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, टू अंडरस्टैंड, टू नो दैट एंड टू इम्प्लीमेंट दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, आप कितने बड़े ज्ञानी हो जाओगे, लेकिन अगर आप में संयम नहीं है वो ज्ञान को अप्लाई करने का, अगर आप में संयम नहीं है तो आप फेल हो जाओगे लाइफ के अंदर में, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज। इफ यू डोंट करेक्ट. हैव दैट डिसिप्लिन, इफ यू कांट implement that knowledge into action, and हम्म. I always say that there's very important thing in stock market is do's and don'ts के अंदर में don'ts are very important rather than do's. What you करेक्ट. don't have to do in this market, those things are very important. जिस रास्ते जाना नहीं है वो इम्पोर्टेंट है. आई थिंक चार्ली मंगन ने भी हाँ, बोला कि यू टेल मी दैट ओके वेयर इज माय ग्रेव एंड आई विल नॉट गो देयर. सो बिल्कुल आई मेरे थिंक दैट. दादा ने मेरे को ये बात सिखाई थी। दादा ने मेरे को बोला, बताया था कि जिस रास्ते जाना नहीं उसका नाम नहीं पूछने का। करेक्ट. किस रास्ते में जाना नहीं उसका नाम, नाम भी अगर पूछूं तो मेरे में एक्साइटमेंट होएगा, कुछ मेरे उसके प्रति इंटरेस्ट जगेगा। फिर नाम पूछा, फिर मैं बोलूंगा अच्छा ये कैसे होता है, फिर क्या होता है। वो जाने का नहीं भाई, मेरे काम का नहीं है, बात खत्म हो गई। नहीं, आई थिंक विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. इतना आपने यू हैव बीन वेरी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम योर हार्ट. दिल से आपने बात की है सबके साथ में, और अपना ये जो आपने बताया 3 फेजेस में अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताया और बिल्कुल ऑनेस्टली सबके साथ शेयर किया. आई थिंक बहुत इंस्पिरेशन है. आई एम श्योर ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स कैन रियली टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट एंड विल शेयर दैट सक्सेस स्टोरी विद देयर इन्वेस्टर्स. आई एम श्योर इट विल हेल्प देम इन हैंडलिंग, क्योंकि हम बोलते हैं कि एक तो होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और दूसरा होता है इन्वेस्टर मैनेजमेंट. तो हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, दे आर डूइंग वेरी डिफिकल्ट जॉब ऑफ मैनेजिंग इन्वेस्टर्स इमोशन, मैनेजिंग इन्वेस्टर्स बिहेवियर, और वो उनको मैनेज करके उनको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं. बट आपसे बिफोर यू वाइंड अप विल रिक्वेस्ट इफ यू कैन कोई भी आपके सॉन्ग, कुछ पंक्तियां अगर आप गाना चाहें, आप सबके साथ शेयर करना चाहें, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड या एनी सॉन्ग ऑफ योर चॉइस विद ऑल आवर पार्टनर्स टुडे. तो देखिए, एक बार गाना मैंने लिखा था, 2-3 महीना पहले लिखा था। पुराना गाना है, जिंदगी एक जी. सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या बहुत हो इसमें बिल्कुल. जाना। यस. यस. ठीक है।
किशोर कुमार जी का गाना था, किशोर कुमार जी ने गाया था। तो वो गाना मैं आपको बताता हूँ, उसमें वो गाना ऐसा है, और वो हाँ, गाना जो आज मैंने म्यूचुअल फंड का आपको एग्जांपल दिया, मेरे म्यूचुअल फंड का, उस पर जी। पूरा खरा उतरता उस बात पे। ठीक है, अच्छा। तो वो गाना ये है, जिंदगी को सुखी है बनाना, खर्च करने से पहले बचाना। क्या तो क्या बात है। अभी अभी जो मिलीनियल जो चल रहे, और हाँ चार हाँ। दो लाइन और है। अभी जो सब जेनजी, मिलीनियल, मिलीनियल, ये सब जो जो नाम हम चल रहे हैं, अभी सबको जी। तो खर्चा करने का हम सबको यहाँ पे। करेक्ट, बिल्कुल। अब कभी पड़ा वो, अभी क्या 3 लाख करोड़ का मालूम है ईएमआई चल रहा है एप्पल फोन के ऊपर में। आईफोन पे 3 लाख करोड़ का बोलते हैं ईएमआई चल रहा है, सब ऐसा अच्छा, चल रहा वो। है। अरे ऐसे ऐसे डेटा सुनकर पागल हो जाओगे आप। हमारे हम्म। जमाने में ये सब करते तो माँ बाप मार के घर से निकाल दे, चल निकल यहाँ से ऐसा करता है। अभी तो वो सब खत्म हो गया है। तो जी। ये उन लोगों के मिले गाना लिखा कि जिंदगी को सुखी है बनाना, करेक्ट। खर्च करने से पहले बचाना। बचाना। अब आगे अपने स्टॉक मार्केट का आता है, बचत से अपनी इन्वेस्ट करो, सिप को शुरू कर रेस्ट करो, क्या बात है। 10,000 महीने 20 साल लगाना, 12% से करोड़ है हो जाना, जिंदगी को सुखी है बनाना। तो ये शेयर बाजार का है सर, यहाँ पर ये सबको समझ आना चाहिए कि कंटिन्यूअस आप इन्वेस्टमेंट करते रहो। ये बैम्बू ट्री के जैसे है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, बैम्बू ट्री जो होता है उसको, अगर बैम्बू ट्री का बीज को आप, इफ यू सो द सीड्स, you know, Correct. in the ground, you don't get anything, any green shoot, you won't get any green shoot for next 4 years or 5 years and all. So the farmer who is, suppose if I am sowing the seed of bamboo tree, and another my fellow farmer is sowing the seed of for mango or for something else, he will getting 2 crops or 1 crop every year, from the next year. And I am bamboo tree ka farmer who I am not getting the crop for 4.5 years. So this is like a stock market. You buy the stock, not necessarily it's going to give you any return. Not necessarily the stock is going to move up. You are going to get tired. सब कुछ आपको होने वाला है. After 4.5 years, suddenly the green shoot appears from that bamboo tree का जो वहां से surface से होता है. और within 6 weeks बोलते हैं कि 40 फीट ऊंचा bamboo tree खड़ा हो जाता है. Within बिल्कुल। 6 weeks. और वो 40 फीट bamboo tree 50 साल तक रहता है. उसकी लाइफ होती है 50 साल तक. So the question is then what that bamboo tree was doing for 4.5 years. It was spreading its own, नीचे अपना वो जड़ों को अपना फैला मजबूत मजबूत कर कर। रहा था, 40 साल खड़ा होगा. तो ये सीखने का यहाँ पर शेयर बाजार के अंदर में अपने जड़ों को मजबूत करने का है. और यहाँ पर 5 साल 10 साल का यहाँ पर आप करके रखोगे तो ही आपको यहाँ पर आपको सक्सेस मिलने वाली है. तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को. नहीं नहीं, विजय जी, आई थिंक बहुत बहुत इंस्पायरिंग आपका खुद का स्टोरी है। आपके जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक उससे हम सबको बहुत बेनिफिट मिला है। वी रियली आर वेरी वेरी हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू दैट आपके थैंक यू बिजी सर. शेड्यूल में से भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे सब पार्टनर्स के साथ में बातचीत की, बहुत ही दिल से बातचीत की आपने, बहुत ऑनेस्टली के साथ हमें एक्सपीरियंस शेयर किया। सो डेफिनेटली आज हम बहुत रिच हो गए हैं आपके एक्सपीरियंस से. All of it become 1%, 2% better than what we were and become very rich now today. Thank you very much, Vijay ji, and thank you to all our partners for joining at this in this very special session. बहुत ही स्पेशल बातचीत जो श्री विजय केडिया जी के साथ आज हमने की. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. नमस्ते. थैंक यू नम्रता ऑल्सो. थैंक यू. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.